and every corner of the country. The idea was always to create leaders and not followers. Today, in this session, which is devoted to quantitative aptitude, uh, the topic which has been taken is arithmetic data interpretation. There's a part two of this because we have already done one class on this particular topic. And today we will learn more about this particular topic, which is important for this year, law entrance examination, CLAT. Over to you, sir. Thank you, Harsh. Thank you. Thank you very much. So good afternoon, everyone. So let's, I think we check it out, Mike and everything. Rishikesh, Ashish, you people are regular, and I received your messages in the WhatsApp, little queries. कुछ लोगों से मैंने बात भी की, and some of I'm not able to talk because of some reasons. So Ashish, am I audible to all of you? Say yes, so that we can proceed. If I'm all right, and if you say no, तो भी like इसका मतलब सुनाई तो पड़ी ना हो, क्योंकि no भी बोलोगे. Yeah, yeah, Rishikesh. So let's start the game. Like for the first time, CLAT introduced data interpretations, right? So we have to, and from all the classes, we are working on one common thing. कि अगर आप सब कुछ in your surroundings, in your past, present, अगर आप like सोसाइटी में रहते हैं, तो एक तो है कि what you see, these are the facts, right? अब इनके आप मतलब निकालते हो. जैसे आप कुछ लोग बोलते होंगे कि आई कैन स्कोर गुड मार्क्स इन एप्टीट्यूड क्वांट, and some of I'll not score good marks in quant but score good marks in legal. So quant and legal, this paper is same for all, right? But some of you are saying that I am not able to score good marks in quant or in maths. So what is this? This is your particular meaning, this is your particular interpretation about the data, right? So what I'm trying to do here in the classes, I'm trying to alter your comprehension, right? I'm trying to alter your comprehension कि तुम क्या समझते हो और एक एंगल और क्या हो सकता है. रियलिटी वही है जो तुम समझते हो या रियलिटी कुछ अलग है. अब टुगेदर एवरीवन और नॉट टिल नाउ? All right. So I have given 3-4 tips in arithmetic, right? अगर आपको याद हो तो I have given 3-4 tips in arithmetic. उसके बेसिस पे we are solving mini questions, आरुषि, right? जैसे one understanding we build up. अगर मैं शुरू से सारी क्लासेस 2 मिनट में रिकैप दूं एक. First we understood, we gone deep to the 100% understanding. 100% what is the meaning you read in books earlier and what is the reality. तो मैं देखूं कि यार 100% इस चीज को हम दिन भर बोलते रहते हैं और इसको हम knowingly or unknowingly we keep using in your comprehensions. This is whole. So in logic, अगर मैं परसेंटेज लैंग्वेज में लिखूं तो 100% का मतलब है पूरा. तो इस अब अगर 100% काम हो गया मतलब पूरा काम हो गया, 0% काम हुआ मतलब बिल्कुल काम नहीं हुआ. तो जो भी तुम्हारा वर्क है या जो तुम्हारा पूरा यूनिवर्स है इज लाइंग बिटवीन 100 and 0%. तो एनी एक्ट, एनी वर्क, एनीथिंग is less or equal to 100% and more or equal to 0%. Yes or no? Right? तो जैसे अगर आप बोलो कि मेरे 50% चांसेस हैं कि मैं शॉर्टलिस्ट हो जाऊं, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट 50% चांसेस हैं कि तुम शॉर्टलिस्ट ना हो. यस सर, राइट? तो द सेम, राइट? तो एंड दूसरी बात हमने जो सीखी थी वो ये सीखी थी, इज अ क्विक रिकैप फ्रॉम द ऑल क्लासेस. जो दूसरी बात, सेकंड बात हमने
सीखी थी कि यार व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस लैंग्वेज परसेंटेजेस, तो अनदर अंडरस्टैंडिंग रेशियो से इसका रिलेशन क्या है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंड आप तभी कर सकते हैं जब आप ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज समझें, right? Comprehension of English in Hindi, Hindi in English, only you can do when you know. If you don't know, not only you comprehend wrong, you miscomprehend. होता ना कि अगर आप सही मतलब नहीं निकालते हैं, इसका मतलब कोई मतलब नहीं निकालते हैं ऐसा नहीं है, फिर आप गलत मतलब निकालेंगे। तो हमने किया था कि अगर वन होता ना कि अगर ये है हाफ, तो हाफ का डबल होगा पूरा, तो वन क्या है पूरा, इसका मतलब वन है आपका 100%। सो 1/2 क्या है आपका, दिस इज 50%। तो अगर 50% प्रॉफिट हुआ, 50% पॉपुलेशन बढ़ गई, 50% एरिया बढ़ गया, 50% वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब दूसरी अंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग में फटाफट आनी चाहिए दैट 1/2 इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। और 1/2 इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, और ये डिक्रीज किस पे होता है, बेस पे, कि पहले जो भी वैल्यू थी अगर 4 थी तो 1/2 इंक्रीज हुआ, मतलब 2 इंक्रीज हुआ 6 हो गया। 40 थी तो 20 इंक्रीज हुआ 60 इंक्रीज हो गया। 400 था तो 200 इंक्रीज हुआ 600 हो गया। ये डिपेंड करेगा कि आपकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी। तो ग्रोथ ऑफ 33.33% इट सिंपली मीन्स 1/3। इन कॉम्प्रिहेंड इन चीजों को हमने सीखा था। एंड अनदर थर्ड रिलेशन वी अंडरस्टूड, दैट इज रिलेशन बिटवीन x इक्वल टू a इंटू बी। अगर कुछ ऐसा रिलेशन है दैट इज एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एंड एरिया इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। जैसे पीस इज नथिंग बट yes, why not? At the age of 60 you can prepare for CLAT Apo A9. So why you want to prepare at the age of 40 for the CLAT? Yeah, Oppo A9. He's asking, can I prepare CLAT at the age of 40? You can prepare the CLAT at the age of 400 also. But जिंदगी आपने सिर्फ CLAT prepare करने के लिए ली है. All right, all right, all right, all right, all right. Okay. So look at the situation first. फिर हम आगे बढ़ेंगे आज. Look at the situation first. थोड़ा सा अलग है. If when a student score 30% marks, then he failed by 5 marks. Failed by 5 marks, but when he scored 40% marks, he got 10 marks more than the passing. ये डेटा है. स्क्रीन इज नॉट विजिबल. क्या बात कर रहे हो? Now it's visible. Maybe it's a network issue from your side. Yeah, Arushi, try to comprehend and no need to create panic. जैसा भी देखो, जैसा भी तुम सॉल्व करते हो, तुम नहीं सॉल्व करते हो, ये भी तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन। शुभांगी अभी दिख रहा है? Now try to solve it. Yeah, Shubhangi Mishra. What is the answer? Arshi, Ashish.
150 मैक्सिमम मार्क्स। ओके, अब देखो, लेट्स सॉल्व दिस। ओके, the question is, when a student scored 30% marks, then he fails by 5 marks, but when he scored 40% marks, then he passes 10 marks more than the passing marks. लास्ट क्लास में बात की थी कि if you are not alert, if you not learn anything new, तो हमारा दिमाग जो प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग अभी तक हो गई है उसी बेस पे चलेगा। ये सुनो, जैसे अगर हमने प्लेन इजाद नहीं किया होता तो हम आज उड़ नहीं रहे होते, कार इजाद नहीं की होती तो आज हम बुलक कार्ट से चल रहे होते, बुलक कार्ट इजाद नहीं की होती तो आज हम गधों से चल रहे होते, और गधे भी इजाद नहीं किए होते तो आज हम पैदल ही चल रहे होते, क्योंकि शुरू में तो हम पैदल ही चल रहे थे। ये सुनो, तो एक तो है कि तुम्हारा स्कूल की जो लर्निंग हुई है कि आप टोटल मार्क्स को x मानते हो, ये कुछ गलत नहीं है, लेकिन टोटल मार्क्स को जब आप x मानते हो, ये जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है ये फोर्स्ड है, क्योंकि तुमने बहुत बार इट बिकम योर हैबिट, समझो। क्योंकि जनरल कुछ पता नहीं होगा तो आप कोई जनरल मार्क्स मानोगे, लेट्स से x, क्योंकि मार्क्स को आप 400 तो मान नहीं सकते, क्योंकि वो तो आपको कैलकुलेट करना है। तो आपने मार्क्स को लेट टोटल मार्क्स 100 एज्यूम कर लिया, एंड 30% अगर मार्क्स मिले तो 5 मार्क्स से फेल हो गया। इसका मतलब अगर टोटल मार्क्स का 30% मार्क्स मिले और इसमें 5 मार्क्स और ऐड कर दें तो वो पास हो जाएगा। यस नो, और टोटल का 40% मार्क्स मिले तो उसको पासिंग से 10 ज्यादा मिलते हैं। अगर इससे मैं 10 माइनस कर दूं, भाई अगर पासिंग मार्क्स है तुम्हारे लेट से 40 और तुम्हें 10 ज्यादा मिले हैं 50, तो 50 से अगर मैं 10 माइनस कर दूं तो 40 पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। ये सुनो, इफ यू मेक द लीनियर इक्वेशन यू मेक लाइक दिस, और सॉल्व करोगे तो ये इधर आएगा इधर जाएगा, इसका मतलब 40x by 100 माइनस 30x by 100 टू 10 प्लस 5 15, और 10x by 100 इक्वल टू 15, 0 से 0 खत्म हो गया, और x इक्वल टू 150। दिस इज योर कॉम्प्रिहेंशन। अगर तुम्हारी मैथमेटिक्स ठीक होगी, अगर ठीक ठाक नंबर आए होंगे, ये सब कुछ किया होगा, तो यू विल सॉल्व द क्वेश्चन लाइक दिस। दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन। दूसरा, अगर मैं इसी को ऑब्जर्व करूं, नाउ कैट दिस काइंड ऑफ एग्जाम्स दे वांट योर डीपर कॉम्प्रिहेंशन, कि मैं देखूं यार पासिंग मार्क्स जो भी हैं, फॉर एग्जांपल ये पासिंग मार्क्स हैं, 30% मार्क्स मिले हैं तो आपको पासिंग से तुम 5 नंबर से फेल हो गए हो, इसको मतलब पासिंग से 5 कम मिले हैं, और जब तुम्हें 40% मार्क्स मिले हैं तो तुम्हें पासिंग से 10 ज्यादा मिले। तो अगर मैं इस 40% और इस 30% का डिफरेंस लूं, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 40 और 30 का डिफरेंस, और यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इज 10 प्लस 5, दिस इज 50। तो अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं देखूंगा कि 30-40 का डिफरेंस कितना है, 10%, और ये डिफरेंस 10 प्लस 5 15 के बराबर होना चाहिए। तो 10% की वैल्यू अगर 15 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 150। अब ये क्वेश्चन 1 सेकंड का हो गया। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है तो हाउ विल कॉम्प्रिहेंड दिस डेटा, कि यार 30% 40% डिफरेंस कितना है इसका, 10%, 10 नंबर ज्यादा 5 नंबर कम। जैसे अब यहाँ पे राहुल बैठा हो, आशीष राहुल से 5 मीटर पीछे बैठा हो, और आरुषि राहुल से 10 मीटर आगे बैठी हो। इसका मतलब आशीष और आरुषि के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, 15 मीटर ना, इन दोनों का, राइट। ये 5 पीछे है और ये 10 आगे है, ये सुनो। तो दिस जो स्पीड विल कम आउट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। साइंस जितना भी हमने, टेक्नोलॉजी जितना भी हम आगे इवॉल्व हुए हैं आरुषि, उसका रीजन हमारा ऑब्जर्वेशन है।
दिमाग का हमारा एक पार्ट मेमोरी है, इज नॉट द ओनली पार्ट. इफ यू सी लिटिल डीपली यू विल गेट इट, एंड we can create miracles in our life अगर इस चीज को हम देख सके. It's your observation, it's your consciousness, right? तो अब ये क्वेश्चन 1 सेकंड का हो गया कि यार 10, अच्छा पासिंग मार्क्स, अब 100% मार्क्स निकाल लिए, ये तो ये कितने नंबर आए आपके, टोटल मैक्सिमम मार्क्स आ गए 150, राइट? अब 100% अगर 150 है तो 10% कितने होंगे, 15 अभी निकाला था हमने, और 30% कितने होंगे, 10% अगर 15 है तो 30% कितने होंगे, 45, राइट? इसका मतलब जब उसको 30% मार्क्स मिले हैं तो 5 नंबर से वो फेल हो गया है. इसका मतलब जब 45 मार्क्स मिले हैं तो 5 नंबर से वो टपक गया है. तो उसका मतलब पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए, 45 + 5 इट्स 50. तो पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए, 50, और 50 आउट ऑफ टोटल मार्क्स कितने हैं, 150. तो 50 150 का कौन सा परसेंट हुआ, इज 1/3 और 33.33% is. Is that clear? So I am not teaching here only solutions. I am teaching here कि how you can respond in the minimum time. Response time I am teaching primarily. Now solve this. Solve this question. How much percentage in the exam? In the exam, if 35% of the student failed in maths and 25% of the student failed in English and 10% failed in both, how much percentage passed in both the subject? And this question already happened in your exam. Try to crack it. What is the answer? Yeah, are we solving the question? Arushi, Ashish, Rishikesh, Soumya Patel, and all my beautiful friends, Subhangi, Soumya. Right. देख, अगर आंसर नहीं आया तो सॉल्व करने के बाद अगर ये एहसास होता है कि नहीं आया, तो ये भी तो कम से कम आंसर आया कि मेरा आंसर नहीं आया. तो ट्राई एंड व्हाट योर एक्सपीरियंसेस, बिकॉज जो तुम्हारा एक चीज सच है टू मी, दैट इज योर एक्सपीरियंस. व्हाट योर एक्सपीरियंसेस शेयर टू मी कि क्या आया है. ऑलराइट, नो वरी अबाउट इट. अब देख, अब इसको बहुत प्यार से देखें. जैसे देखो, अब इनको आप अगर ऐसे इस, या आरुषि, मी टू एक अभी इवेंट चला था, राइट? याद है मी टू? राइट, ऑलराइट. अब देख, अब अगर इसको डेटा को हम बहुत प्यार से देखें, इन एन एग्जाम 35% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स. अब देखो, एग्जामिनर चाह क्या रहा है कि तुम्हारा ऑब्जर्वेशन कितना शार्प है. 35% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स, तो इसका मतलब ये भी तो हुआ कि यार 35% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स, तो ये 35% स्टूडेंट मैथ्स में फेल हैं, लेकिन हो सकता है ये इंग्लिश में भी फेल हो, क्योंकि मैथ्स में फेल है. उसने ये तो नहीं कहा कि इंग्लिश में पास है. ये सुनो, तो 35% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स और 35
35% students only fail in maths. There are same statement or different statement. देखकर कॉम्प्रिहेंशन यहां अच्छा हुआ तो आरसी पे भी फर्क पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार हम सोसाइटी में जीते जीते कुछ तो हम मतलब होता ना कि किसी ने कुछ बोलना शुरू किया और तुमने बोला हाँ 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 मुझे पहले पता है, इसका मतलब बहुत सारा कॉम्प्रिहेंशन तुम घर से करके आए होते हो, राइट? तो अब अगर मैं देखूं, दो चीजें हैं, एक है इंग्लिश, एक है आपका मैथ्स और दूसरी है इंग्लिश। तो 35% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स and 25% in English, 10% failed in both the maths and English. इसका मतलब यहाँ पे मैं 10 लिखूंगा क्योंकि ये मैथ्स और इंग्लिश का इंटरसेक्शन सेट है, कॉमन सेट है, यस नो। तो 10 इस ऐसे स्टूडेंट है, पहले यहाँ से मैं शुरू करूंगा। क्यों यहाँ शुरू करूंगा? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैथ्स में देखना चाहता हूँ, सिर्फ मैथ्स में कितने लोग टपके हैं। टपके हैं मतलब समझ में आ रहा है? टपके मतलब टपके। तो 10 स्टूडेंट ऐसे हैं, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फेल हुए हैं दोनों सब्जेक्ट्स में। तो 35 माइनस 10 इट्स 25 एंड 25 माइनस 10 इट्स 15। इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि 25% स्टूडेंट्स फेल्ड इन ओनली मैथ्स? आरुषि करेक्ट, वेन डायग्राम। और 15%, अब वेन डायग्राम कहो या कुछ भी कह दो इसको, राइट? क्योंकि 10% अगर दोनों में है, जैसे वो ना कि 10 इंग्लिश में भी हैं और 10 मैथ्स में भी हैं। मैथ्स में फेल हुए हैं 35, तो सिर्फ मैथ्स में कितने फेल हुए होंगे? 25। इंग्लिश में फेल हुए हैं 25, तो सिर्फ इंग्लिश में कितने फेल हुए होंगे? 25 माइनस 10 15। ऑलराइट, इसका मतलब 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स में फेल हैं, 15% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल हैं और 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं। इसका मतलब 25 प्लस 10 प्लस 15, 25 प्लस 15, 40 प्लस 10 50। तो 50% स्टूडेंट्स हैं who failed in both the subjects or at least fail in one subject. अगर पूछता कि how many, tell me the percentage of the student who failed at least in one subject, तो कितना होता? 50%। अब बोला उसने पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स, तो 50% स्टूडेंट हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में तो फेल हो गए। इसका मतलब जो अब स्टूडेंट कितने होंगे? हमेशा 100%। अगर मैं बोलूं आरुषि, अगर 50% किसी क्लास में गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने परसेंट होंगे? वेरी गुड ऋषिकेश। अगर 40% गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे? एंड दिस इज योर नेचुरल कॉम्प्रिहेंशन, यू ऑल नो दिस। तो अब अगर भाई क्लास में दो ही तो स्टेट होंगी, या तो स्टूडेंट पास हुए होंगे और स्टूडेंट फेल हुए होंगे। तो अगर पास फेल स्टूडेंट 50% है, इसका मतलब पास स्टूडेंट कितने हैं? 50%। तो इसका मतलब the number of student who passed in both the subjects, that is 50%. I think we are together till now. Yes sir. Now if this kind of data is coming in the exam, तो फटाफट करोगे कि ये वाला आप पहले उठा लोगे। 35% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स, तो 35 माइनस 10, इसका मतलब 25% स्टूडेंट ओनली फेल इन मैथ्स। 25 इन इंग्लिश, तो 25 माइनस 10, 15 ओनली फेल्ड इन इंग्लिश। तो ये 15 है और ये 25 है, तो 40% एंड 10% स्टूडेंट दोनों में फेल है। इसका मतलब 50% स्टूडेंट फेल है। आप दोनों में फेल हैं, ये एक सब्जेक्ट में फेल है, ओवरऑल तो आप फेल हैं। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में भाई ऐसा नहीं है। बड़े खुश हो गए तुम लोग तो, राइट? क्योंकि अगर आपने ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर कर लिया और आप ड्रॉप आउट हो गए, इसका मतलब कुछ नहीं है आपके पास, ऐसा नहीं है, कुछ तो है, राइट? तो आपको कॉलेज बताता रहेगा कि पूरे टाइम कॉलेज नहीं गए, आप एक ही साल गए हो, राइट? अब टुगेदर टिल नाउ, ऑलराइट। अब देख, अब अगर एक डेटा मैं आपसे और पूछूं, ये हमने एक बार किया था और इसको भी इस पे लास्ट क्लास में काम किया था, इस पे हम अभी वापस आएंगे। ट्राई टू सिर्फ दिस डेटा, और इसको मैं थोड़ा सा इजी करता हूं पहले तो। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज was 9600
if the male and female increase by 8% and 5%, male increase by 8% and female increase by 5%, the population will become 10,272 after 1 year. Find the number of males at present. अब देखो, इसको होल्ड करो, इसको बाद में करना, मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं. मैं बोलूं, if the population of Dehradun, male plus female, is 10,000. ये क्या है? This is population of Dehradun, 10,000 male plus female, right? And this is the population of Dehradun is 2002. In 2003, if male increases by 10% and female increases by 12%, male increase by 10% and female increase by 12%, correct? And the population of the town become 11,100. 11,100, right? Calculate number of female in 2002. Number of female in 2002. Think on this. Give 1 minute to approach this, and this is then I will give you a beautiful comprehension of this data. Then you can solve the question maximum in 5 seconds, and without using any formula, with your simple particular logic. अभी आप जैसे भी कर सकते हो करो, जैसे भी, और कर भी कह सकते हो. एग्जाम में हम वो करते हैं जो एग्जामिनर पूछता है, या हम वो करते हैं जो हमें आता है. एंड द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन, जो हमें आता है उसके बेस पे हम वो भी जान सकते हैं जो हमें नहीं आता है, राइट? तो ट्राई टू सॉल्व इट. 2002 male plus female was 10,000. Male increased by 10%, female increased by 12%. The population became 11,100. Female in 2002. Yeah, Shreshi Sekhar, Ashish, Shreshi, Rishikesh, Shubhangi, Arushi. Very good. है ऋषिकेश, आपका आंसर क्या? 220 minus 0.5. What is this? No, this is, अब मैंने बोला कि कैलकुलेट नंबर ऑफ फीमेल इन 2002. देख, मैं सॉल्व इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आप एक बार जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक डिफरेंस नहीं समझोगे कि व्हाट डिफरेंट आई एम टेलिंग यू, और इन सारे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करोगे. 600 आशीष, 600. अब देखो, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी डील कर सकते हैं. वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय ऑप्शन ऑल्सो. आज अरिथमेटिक की परसेंटेज, पीएलडी, सिंपल कंपाउंड वाला डीआई में खत्म कर दूंगा, तो बी वेरी कॉन्शियसली विद मी. एंड तुम्हारे पास आफ्टर द क्लास टेक होम बहुत कुछ होगा करने के लिए, राइट? बहुत कुछ होगा. Ashish, 1100 is 24%. This approach is not right. देखो, मेरा नॉट राइट कहना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, वाई नॉट राइट. और आशीष,
और जितने भी स्टूडेंट हो, तुम लोग लॉ करने जा रहे हो, तुम लोग इस चीज को आज से थोड़ा गहराई समझना शुरू करो। इंपॉर्टेंट इज व्हाई। अब जैसे सुशांत मर्डर मिस्ट्री है, ठीक है, अब हमने अब देखा होगा पूरा केस पलट गया, राइट? तो एक तो है व्हाट और एक है व्हाई। तो अगर व्हाट पे हमने देखा होगा तो फैक्ट सबके सामने था, मुंबई पुलिस ने लगभग केस क्लोज कर दिया था। बट तुमने सोचा कि यार व्हाई, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद सुशांत, व्हाई ही कैन कमिट इट, इज इट क्लियर नॉट? तो आप सच्चाई तक पहुंचे। तो व्हाई मैं बोलूं गलत है, इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है क्यों गलत है। मैं बोलूं सही है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्यों सही है। क्योंकि तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट सही गलत है, और इंपॉर्टेंट इज राइट एंड रॉन्ग, और इंपॉर्टेंट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर यू, फॉर यू। कैन यू करेक्ट नॉट? एंड एंड इफ यू आर नॉट ऑब्सेस्ड विद लॉजिक, जैसे हमने अगर डिसीजन मेकिंग की एक क्लास ली थी, उसमें सिर्फ मैंने यही बताया था कि लॉजिक फंक्शन कैसे करता है, काम कैसे करता है, लॉजिक होता क्या है, सिर्फ इतनी बात करी थी मैंने। ऑलराइट, शुरू ही नहीं की भी मैंने क्रिटिकल रीजन डिसीजन मेकिंग क्लास, दैट वाज द वेरी फंडामेंटल क्लास। अब इसको देखो, अब इस क्वेश्चन को अब अगर जनरली आप सॉल्व करोगे तो यू सॉल्व द क्वेश्चन लाइक दिस। बताता हूँ, यू सॉल्व द क्वेश्चन लाइक, लेट मी डिलीट दिस। Give me 1 minute. I think there's a little network is till then. Like take the snapshot of this question. I think there are little disturbance in my this marker. Allow me 40 seconds and just back. Uh, take the snapshot of this and try to solve this question. And head sir, I'm just relogging. Yes, Please allow me. sure, sir. Right, because I think
Hi, sir. Yeah, Harsh, I'm so sorry. No, not a problem, sir. I've just enabled the screen sharing option, and you are also visible to us as well as audible. Yeah, thank you very much. Our screen is visible. No, sir. The screen is not visible. No. Is it? Yes, now it is. Right. Yeah, this was the question, right? तो अभी इन द लास्ट मैंने क्वेश्चन दिया था कि मेल प्लस फीमेल, अब इसको दोनों कॉम्बिनेशन देखो फटाफट क्विकली. मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल was 10,000. Male increased by 10% and female increased by 12%. And this was the population 2002 and become कितना बन गया था 11,100. So the general approach, देखो एक तो मैं अप्रोच बताता हूँ जो तुम्हारे स्कूल की अप्रोच है कि मेल प्लस फीमेल इज 10,000 इज द फर्स्ट. आशीष ने बिल्कुल ऐसे किया होगा. फर्स्ट इक्वेशन, मेल इंक्रीज बाय 10%, सो मेल बिकम 1.1 टाइम्स. अच्छा ये बात मैंने सिखाई थी लास्ट डीआई क्लासेस में. अगर अभी क्लियरिटी नहीं है, यू कैन आस्क एनीवन इफ डोंट हैव क्लियरिटी कि व्हाई आई एम मल्टीप्लाइंग टू 1 by 1 1.1, तो पूछ सकता है शुभांगी. बिकॉज कि वैल्यू इंक्रीज बाय, नहीं यस सर मतलब समझना है या समझ में आ गया है शुभांगी? इट वैल्यू इफ योर इनकम इंक्रीज बाय 10%, तो 10% इंक्रीमेंट हो जाना मतलब 110% हो जाना, क्योंकि पूरा कितना है 100%. तो इफ यू इंक्रीज 10% इट मींस या I'll repeat it. तो शुभांगी इफ इंक्रीज 20%, तो इंक्रीज तो बेसिक वैल्यू पे करता है ना. तो अगर आपके पास शुरू में 5,000 रुपीज थे तो 100% पैसे कितने थे 5,000. 6,000 रुपीज थे तो 100% पैसे कितने थे 6,000. Yeah, sure. I'll repeat it. I'm telling कि if any value increase by 20%, so increment of 20% means become 120%. ये इतनी बात समझो पहले. Increment of 20% means become 120%. Increment of 30% means become 130%. Decrement of, ये increment है. Decrement of 20% means become 80%. Because जो लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं जिसमें कॉम्प्रिहेंशन हम इंटरप्रिटेशन सीख रहे हैं, दैट इज परसेंटेज. एंड इन दैट 100% का मतलब पूरा है, कंप्लीट है. जैसे कि 100% क्लास में आऊंगा मतलब पक्का आऊंगा, ये सुनो. एंड मैं इसको परसेंटेज लिखूं, ये सिंबल बनाऊं, या मैं प्रतिशत लिखूं, ये तीन अलग अलग बातें हैं. ये एक ही बात को कहने के तीन अलग अलग वेज हैं. द थ्री वेज टू रिप्रेजेंट सेम थिंग और थ्री डिफरेंट थिंग्स. यस, डिफरेंट वेज. तो अगर हम ये अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आ जाए तो पढ़ाई तो बहुत कम हो जाएगी. इसका मतलब 120% दिस सिंबल कैन बी रिप्लेस्ड आउट बाय 100. तो इसका मतलब हुआ 120/100 और इसका मतलब हुआ 1.2 टाइम्स. इसका मतलब इफ एनी वैल्यू इंक्रीज बाय 20%, इट सिंपली मींस, अगर इसको डेसिमल में इसका हम कॉम्प्रिहेंशन करें तो डेसिमल में कॉम्प्रिहेंशन हुआ कि ये 1.2 टाइम्स हो गई. कोई वैल्यू 30% इंक्रीज हो गई
मतलब 130% हो गई, और अगर ये वाला सिंबल हटाओगे तो 130 इंटू 1/100 आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 1.3 टाइम्स। तो अगर कोई वैल्यू 1.3 टाइम्स हो गई है, इट मींस इंक्रीज 30%। कोई वैल्यू 1.4 टाइम हो गई है, इट मींस इंक्रीज 40%। कोई वैल्यू 1.6 टाइम्स हो गई है, इट मींस इंक्रीज 60%। ये सुनो, कोई वैल्यू 10% इंक्रीज हो गई है, इसका मतलब 1.1 टाइम्स हो गई है, वाइस वर्सा। ये समझ में आ गया? ऑलराइट। अब कोई वैल्यू 20% रिड्यूस हुई, मतलब 80% हो गई, मतलब 0.8 टाइम्स हो गई। अब कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में, एग्जाम में, इधर इन क्लैट और इन कैट और एनी पर्टिकुलर वेयर, अब बोला कि तुम्हारी जो भी प्रोडक्ट था उसकी वैल्यू अब 0.9 टाइम्स हो गई। तो 0.9 टाइम्स हो गई, मतलब 10% डिप्रिशिएट कर गई, मतलब 90% हो गई। इधर एंड मेनी वेज टू से वन थिंग, कैन यू अंडरस्टैंड नॉट? आई थिंक वी आर टुगेदर टिल नाउ। बात समझ में आ गई सबको? ये बात ठीक से, बिल्कुल बढ़िया। तो बिल्कुल ऐसे ही फ्रेंड्स की तरह देखो, मैंने डे 1 बोला था कि हाय, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, तो फ्रॉम माय साइड यू ऑल माय फ्रेंड। लेकिन तुमको आदत है बहुत सारी चीजें झूठ के साथ लेने की, तो हो सकता है तुमने सोचा अच्छा सब कहते हैं दोस्त, बट बाद में सब अजीब होते हैं, सारे के सारे टीचर। और ऐसे ही तुम लोग आपस में कि सब कहते हैं, ऐसा होते नहीं है, राइट? बट व्हाट आई एम टेलिंग, आई मीन इट फर्स्ट। ऑलराइट, तो नाउ लेट्स अप्लाई दैट कॉम्प्रिहेंशन द सिचुएशन। ऑलराइट, तो मैं देखूं कि अगर मेल इंक्रीज हो गए 10%, इसका मतलब दूसरी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? मेल अगर इंक्रीज हो गए कितने, 10%। अब देख, इसका कॉम्प्रिहेंशन मैं बताऊंगा कि हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन 10 सेकेंड्स। तो बिल्कुल दिल थाम के बैठना है। m इंटू 1.1, फीमेल इंक्रीज बाई 12%। अब आरुषि बताएगी फीमेल इंक्रीज बाई, शुभांगी बताएगी फीमेल इंक्रीज बाई 12%। तो इंक्रीज 12% मीन्स बिकम 112%, बिकम 112%। ब्यूटिफुल आरुषि, यस। आशीष तुमने गलती की, हरियाणा रोड बैच की बसों में नहीं बैठेगा अभी तुम। आशीष, वहां पे लिखा होता है सावधानी घटी दुर्घटना घटी। तो एप्टीट्यूड का एक मतलब है अलर्टनेस। शुभांगी यू आर वेरी राइट, ऋषिकेश करेक्ट, 1.12। इसका मतलब फीमेल become 1.12 and the new population become 11,100. This is the first equation, the second equation. फिर आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, और जब आंसर आएगा तब तक आप टपक चुके होंगे। टपक समझ रहे हो? छपाक। बिकॉज यू इन एग्जाम क्लैट सिर्फ आपसे आंसर नहीं मांग रहा है, दे वांट आंसर विद इन टाइम। ये सुनो, राइट? एक तो रिस्पॉन्स है। अब आप कितनी ही स्पीड, कितनी ही प्रैक्टिस क्यों ना कर लो, इफ विल नॉट चेंज द रूट, इसका टाइम आप मिनिमाइज नहीं कर सकते। तो बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं काम करते करते कि यार इतने घंटे पढ़ रहा हूँ, स्पीड तब भी नहीं आ रही है। क्योंकि और बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपको लगता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं फिर भी मार्क्स आ रहे हैं, मतलब दे आर टेकिंग अनदर रूट और तुमसे शेयर नहीं कर रहे, अगर पता चल भी गया, राइट? तो अब मैंने अभी अब इसको अगर अलग एंगल से सॉल्व करूँ, एक बात बताओ, लुक एट दिस, मेल प्लस फीमेल कितने हैं? 10,000। मेल कितने बढ़े? 10%। और फीमेल बढ़ी कितनी है? 12%। एक बात बताओ, मैं बोलूं अगर मेल इंक्रीज हो गए हैं 10% और फीमेल भी इंक्रीज हो गई है 10%, तो क्लास का नंबर कितने परसेंट इंक्रीज हो गया होगा? नो नो ऋषिकेश, दिस इज नॉट द अप्रोच। बिकॉज ऐसे भी दो, इससे भी एक इक्वेशन बनेगी ना यार। ऋषिकेश बोल रहा है कि 10% ऑफ मेल प्लस 12% ऑफ फीमेल इक्वल टू 1100। दिस इज अनदर इक्वेशन। आप ये इक्वेशन बनाओ, या फिर आप ऐसे बनाओ, मेल प्लस फीमेल इक्वल टू 10,000, और 10% ऑफ मेल मतलब 0.1 m प्लस 0.12 f
इक्वल टू 1100। ये दो इक्वेशन तो भी सॉल्व करनी पड़ेगी ऋषिकेश, शॉर्ट थोड़ी बनेगा इससे। ऋषिकेश, होप यू अंडरस्टैंड, राइट। तो होता ना कि मैंने कान ऐसे पकड़ा था, तुमने ऐसे पकड़ लिया। अब तुम्हें दिख भी रहा हूं तो ऑलराइट। अब इसको देखो थोड़ा सा, देख एक बात बताओ, क्लास में कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज हैं। गर्ल्स इंक्रीज हो गई 10% और बॉयज भी इंक्रीज हो गए 10%। तो क्लास का नंबर कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा? वाह आशीष, कभी कभी तो तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन माशाअल्लाह होता है। माशाअल्लाह, समझ रहे हो? और उसके लिए मैं लिखता हूं, देख एक बात बताओ आशीष, मान लिया 5,000 मेल है और फीमेल है 5,000। देख ये फंडामेंटल बातें क्लियर नहीं है तुम लोगों को, दैट इज वाई कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आ रही है। नो, डोंट स्ट्रेट वे जंप टू द कॉम्प्रिहेंशन। जैसे होता है ना पीस के साथ में लोग बोला दे वांट टू बी पीसफुल बट दे आर नॉट, बिकॉज पीस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन। Until unless you are not satisfied, you cannot be peaceful. The same with the comprehension. Until we don't understand the basic reality about things, how you can comprehend. अब देख 5,000 का 10% मेल बढ़ा मतलब कितने बढ़े? 500। और 10% फीमेल बढ़ी मतलब कितनी बढ़ी? 500। नंबर कितना था यहाँ पे? 10,000। और 500 प्लस 500 कितने बढ़ गए? 1,000। तो 1,000 10,000 का कितना परसेंट है? 1/10 मीन्स 10%। एक बात बताओ, मैं अगर बोलूं कि इंडिया के जितने भी लोग हैं, अगर सबकी इनकम अपनी इनकम का 10% बढ़ जाए तो इंडिया की इनकम कितने परसेंट बढ़ जाएगी? 10%। जैसे क्लास में गर्ल्स हैं और बॉयज हैं, गर्ल्स हैं और बॉयज, इसको देखो प्यार समझ लो ये सारी कहानी को अच्छे से। मतलब इसमें एक तो होगा कि मैं बोल दूं ऐसे ऐसे कर लो तो भी आंसर आ जाएगा, बट उसमें सिर्फ एक ही दो टाइप के क्वेश्चन के आंसर आएगा। अगर पूरा प्रोसेस समझ में आ गया तो अगर कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन चेंज करके भी देता है तो भी आराम से कर पाओगे। शुड आई एक्सप्लेन फ्रॉम बेसिक? जिस तरीके से रिस्पॉन्स आया मुझे नहीं लगता कि वो क्लियरिटी है। देखो, इफ मेल इंक्रीज बाई, अगर क्लास में, ऑलराइट I'll explain from basic, नो वरी अबाउट इट, नो वरी। देखो एक बात बता बहुत प्यार से, अगर क्लास में मुझे नहीं पता कितनी गर्ल्स हैं, मुझे नहीं पता कितने बॉयज और इनका सम 10,000, केस 1। अगर मैं बोलूं गर्ल्स इंक्रीज हो गई 10% और बॉयज इंक्रीज हो गए 20% और पूछे कि टोटल नंबर क्लास का कितने परसेंट इंक्रीज हो गया होगा, तो आंसर इज डेटा इज नॉट सफिशिएंट टू रिस्पॉन्ड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आई एक्सप्लेन हाउ। क्योंकि गर्ल्स और बॉयज का सम 10,000 थे, ये नहीं पता कि गर्ल्स कितनी और बॉयज कितनी है। समझना बहुत प्यार से भाई, गर्ल्स इंक्रीज हुई 10%, तो ये भी तो हो सकता है कि गर्ल्स हों 5,000 और बॉयज हों 5,000। तो 10% of 5,000 is 500 and 20% of 5,000 is 1,000. So 10% is 500, तो 20% is 1,000। तो नंबर कितना इंक्रीज हो गया? 1,500। और नंबर किस पे इंक्रीज हुआ है? 10,000 पे। तो 1,500 इंक्रीज हो गया है किस पे? 10,000 पे। इसका मतलब जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ वो कितना इंक्रीज हुआ? 15%। लेकिन ये भी हमने अजम्पशन लिया है, ये भी तो हो सकता है कि गर्ल्स हो 4,000 और बॉयज हो 6,000,
तब 10% ये बढ़े तो ये बढ़े 400, और 20% ये बढ़े और ये बढ़े 1200। तो 400 प्लस 1200 1600, और ये नंबर अभी भी 10,000। तो 1600 अपॉन 10,000, ये आ गया आपका 16%। मीन्स व्हाट आई वांट टू से कि अगर 10% गर्ल्स बढ़ी हैं और अलग परसेंट 8% बढ़ा है, 9% बढ़ा है, कोई और परसेंट अगर बढ़ा है, तो हम ये नहीं बता सकते कि टोटल जो परसेंटेज है, गर्ल्स बढ़ा 10%, गर्ल्स बढ़ी 10%, बॉयज बढ़े 20%, तो ओवरऑल कितने परसेंट इंक्रीमेंट हो गया होगा, वी कैन नॉट टेल विद दिस गिवन डेटा। क्योंकि आंसर भी गर्ल्स बढ़ी 10%, बॉयज बढ़े 20%, इसका मतलब टोटल नंबर इंक्रीमेंट इन टोटल नंबर हैज टू बी इन बिटवीन 10 एंड 12, और 10 और 12 के बीच में कितने नंबर्स हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 10 टू 12, तो बताएगा सर 20 के बीच में। इसका मतलब डिपेंड करेगा, अब ये भी तो हो सकता है भी गर्ल एक हो और बॉयज हो 9,999, तो कुछ 10 और 20 के बीच में इन्फिनिट नंबर है ऋषिकेश। देखो कितनी चालाकी से मैंने क्वेश्चन पूछा। 10 और 20 के बीच में शुभांगी 9 नंबर नहीं है, 10.1 नंबर नहीं है क्या शुभांगी, 10.01 नंबर नहीं है क्या, 10.001 नंबर नहीं है क्या, 10.0001 नंबर नहीं क्या। आपको कि अच्छा ये बात है। अब अभी मैंने सिखाया था कि कॉम्प्रिहेंशन डेटा को देख के हम नहीं करते, हम अपने पास्ट बेस पे करते हैं, अपनी लर्निंग के बेस भी करते हैं। तो यू हैव टू अलर्ट, यू हैव टू वेरी केयरफुल व्हेन यू आर रिस्पॉन्डिंग इन इंटरव्यू स्पेशली। तो अब मैं बोलूं कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 10 टू 20, आंसर इज क्या आएगा, बताओ फटाफट, क्या आंसर आएगा, 10 टू 20 के बीच में कितने नंबर है, नहीं बताओगे, यस, infinite, cannot be determined, now nice। अब अगर मैं बोलूं हाउ मेनी नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 20, देन इज 9, राइट, देन इज 9, करेक्ट। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब या तो यार 10% गर्ल्स बने हैं, 20% बॉयज बने हैं, तो हम नहीं बता सकते कि ओवरऑल कितने, क्योंकि आंसर 20 से ऊपर नहीं हो सकता और 10 से नीचे नहीं हो सकता। यार ये बात समझ में आई पहले तो, फर्स्ट, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और एग्जाम में डेटा वो ऐसे ही देगा कि तुम कॉम्प्रिहेंड ना कर पाओ नॉर्मली, बट हम चालाकी से अगर थोड़ा सा हम दिमाग और लगाएं, देन वी कैन कॉम्प्रिहेंड दिस डेटा इन सेकेंड्स। और इस सिचुएशन, इस डेटा को मैं आज समझा के ही जाऊंगा, भले ही सबके सब यहाँ से भाग जाओ, एक भी रहेगा स्टूडेंट क्लास में तो उसको भी मैं समझा के जाऊंगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्प्रिहेंशन। एंड थोड़ी थोड़े में ही आप क्लैट में जितने स्टूडेंट एग्जाम दे रहे होंगे उन सबसे अलग हो जाओगे, कि वो साल भर से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हें कॉम्पीट नहीं कर सकते प्रोवाइडेड इसको समझ जाओ तो। अब देखो, लेकिन अब मैं बोलूं जैसे 5,000 गर्ल्स हैं और 5,000 बॉयज, कोई भी डेटा ले सकते हो, क्योंकि ये तो डेटा गिवन ही नहीं है कि गर्ल्स कितनी बॉयज कितने हैं। तो पहली बात हमें समझ में आई कि अगर गर्ल्स बढ़े 10% और बॉयज बढ़े डिफरेंट देन 10%, 12% और समथिंग, तो ओवरऑल नंबर कितने परसेंट बढ़ गया, वी कैन नॉट डिटरमाइन। इस पे आज कन्विक्शन के लिए क्लास के बाद भी सोचना। लेकिन सेकेंड केस अगर मैं लूं, अगर गर्ल्स इंक्रीज हो गई 20%, बॉयज इंक्रीज हो गए 20%, इसका मतलब क्लास का नंबर भी 20% इंक्रीज हो गया होगा। इस बात से कन्विंस हो, और आई विल एक्सप्लेन विद एग्जांपल। जैसे कि क्लास में 40 गर्ल्स हैं और 30 बॉयज हैं। गर्ल्स अगर डबल हो जाए तो कितनी हो जाएंगी, 80। बॉयज डबल हो जाए तो कितने हो जाएंगे, 60। एंड 80 प्लस 60 कितना हो गया, इज 140।
पहले कितने थे देखो 70। अब अगर यार गर्ल्स को भी डबल कर दिया, बॉयज को भी डबल कर दिया, इसका मतलब नंबर भी डबल हो जाएगा, बिकॉज क्लास में गर्ल्स और बॉयज के अलावा कोई है ही नहीं। तो मैं बोल दूं कि गर्ल्स को मैंने डबल कर दिया या गर्ल्स को मैंने 100% बढ़ा दिया, दोनों एक ही स्टेटमेंट है। बॉयज को मैंने डबल कर दिया या बॉयज को मैंने 100% बढ़ा दिया, दोनों एक ही स्टेटमेंट है। एवरीवन डबल हो गया। डबल होने का मतलब क्या है, जितना था उतना और ऐड कर दिया, तो 100% और। शुभांगी यस। देख समझ में नहीं आया होगा तो बीच में कुछ डाउट आ जाएगा तो अगली क्लास में आते ही मुझे पूछ लेना। और जो जिन कॉन्सेप्ट्स में तुम्हें दिक्कत होती है डीआई में, वो इस नंबर पे आप कॉन्सेप्ट भेज सकते हो। इन नेक्स्ट क्लास विल ऐड इनटू द पीपीटी एंड माय नेम इज राहुल एंड आई एम नॉट द टेररिस्ट। दाढ़ी से लग रहा होगा तुम्हें कि हद है यार। हम्म, नहीं लग रहा है आशीष, बड़े अभी से तुम डिप्लोमेटिक हो गए। अभी से तुम डिप्लोमेटिक हो गए हैं। ये काम अभी तो क्लैट क्लियर करना है एंड लेट्स यूज द लीगल। ऑलराइट, तो आर वी कन्विंस विद दिस एक्सप्लेनेशन दैट इफ गर्ल्स, अब देखो क्लास में अगर इस इंडिया में सबकी इनकम 10-10% बढ़ जाए तो इंडिया की इनकम कितने परसेंट बढ़ जाएगी? 10%। एग्जैक्टली राइट, इस बात से हम सारे कन्विंस हैं। ऑलराइट, तो अब ये समझ में आया कि यार अगर 10% गर्ल्स बढ़े हैं और 12% बॉयज बढ़े हैं, तो कितने परसेंट स्टूडेंट बढ़ गए होंगे? इसके लिए मुझे गर्ल्स कितनी थी पहले क्लास में और बॉयज कितने थे ये पता होना जरूरी है। लेकिन अगर 10% गर्ल्स बढ़े और 10% बॉयज बढ़े तो मुझे समझ में आ जाएगा कि 10% स्टूडेंट बढ़ेंगे। तो हम क्या करें इन क्वेश्चंस में, जैसे है कि 10% गर्ल्स बढ़ी और 12% बॉयज बढ़े। अब बहुत ध्यान से समझना एवरीवन। तो एज्यूम कर ले थोड़ी देर के लिए 10% गर्ल्स बढ़ी और जो बॉयज बढ़े हैं वो 10% बढ़े, जबकि बड़े कितने हैं? 12%। तो मैं एक बेसिक मिनिमम ले लूँ 10%। एज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए 10% गर्ल्स बढ़ी हैं और 10% बॉयज बढ़े। अगर ऐसा होता, इफ ऐसा होता, तो नंबर कितना बढ़ जाता? 10%। स्टूडेंट कितने बढ़ जाते? 10%। ये सुनो, यहाँ पर मेल फीमेल लिखा था, तो गर्ल्स अगर बढ़ी है 10%, बॉयज बढ़े हैं 10%, नंबर कितना बढ़ जाएगा? 10%। और नंबर कितना था? 10,000। 10,000 का 10% कितना हुआ? 1,000। अगर ऐसा डेटा होता तो 10,000 प्लस 1,000 ये नंबर 11,000 हो जाता। ये सुनो, आराम से देखिए, कब कब मैं आगे बढ़ूंगा, कोई जल्दी नहीं। अब टुगेदर राइट। तो अगर 10% गर्ल्स बढ़ती, 10% बॉयज बढ़ती, तो क्लास का नंबर था 10,000। 10,000 का 10% इज 1,000 और ये बढ़ करके कितना हो जाता? 11,000। बट क्वेश्चन कह रहा था कि ये पॉपुलेशन बढ़ करके हो गई है 11,100। यस ऋषिकेश, सही पकड़े हो। हाँ, क्या बात है, राइट। पॉपुलेशन कितनी हो गई है? 11,100। इसका मतलब जो ये 100 एक्स्ट्रा आ रहा है वो क्यों आ रहा है? बिकॉज रियलिटी में तो डेटा ये गिवन है 12% बॉयज इंक्रीज हुए, तो जो एक्सेस 2% की वैल्यू है वो 100 के बराबर होनी चाहिए। शुभांगी, अगर 10 ये बढ़ता 10 ये बढ़ता तो 1000 बढ़कर के 11,000 हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में तो गिवन है कि गर्ल्स इंक्रीज बाय 10% एंड बॉयज इंक्रीज बाय 12%, तो जो एक्स्ट्रा 2% है दिस मस्ट बी इक्वल टू 100। तो क्या मैं कह सकता हूं 2% ऑफ बॉयज इक्वल टू 100?
तो 1% कितना होगा 50, तो 100% क्या होगा 5000। इसका मतलब बॉयज इन द क्लास मस्ट बी 5000। अगर टोटल पॉपुलेशन 10,000 है और बॉयज है 5000, तो गर्ल्स कितनी होंगी 5000। यस। अब ये क्वेश्चन कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। आई एम टेकिंग द कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लाइक दिस, पिक दिस। अब देखो, अब इसको मैं करके दिखाता हूं कि द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 9600। इसका मतलब मेल प्लस फीमेल इज 9600। 8% इंक्रीज हुई है मेल और 5% इंक्रीज हुए हैं फीमेल, राइट। तो 8% इंक्रीज हुए हैं मेल और 5% इंक्रीज हुई है फीमेल। तो दोनों को मैं 5 5 मान लूं, तो 8 को लिखूंगा 5 + 3। तो 5% अगर फीमेल बढ़े और 5% अगर मेल बढ़े तो नंबर कितना बढ़ जाएगा 5%। ये सुनो, तो 9600 का 10% कितना होगा 960। तो अगर 10% 960 है तो 5% कितना होगा 960 का हाफ 480। तो 480 पॉपुलेशन बढ़ती, इसका मतलब कितनी हो जाती 10,080। यही होती ना, या राइट 10,080। बट पॉपुलेशन हो कितनी गई है 10,272, राइट। तो इसका मतलब 10,080 और 10,272 का जो डिफरेंस है, राइट, तो डिफरेंस कितना है 172 + 10 182 आई थिंक। 20 ये और 100, हाँ 182 इज क्लियर नॉट। तो इसका मतलब जो इसका 10,080 और 10,272 का डिफरेंस है, ये वैल्यू 3% के इक्वल होनी चाहिए। भाई पॉपुलेशन हो जाती, अगर 5 ये इंक्रीज होता 5 ये इंक्रीज होता तो पॉपुलेशन हो जाती 10,080। बट पॉपुलेशन हो कितनी गई है 10,272, बिकॉज मेल इंक्रीज बाई 8%। तो जो एक्सेस 3% वैल्यू है ये किसके बराबर होगी 182। 182 ना, सॉरी 192। हाँ 192, आई एम सॉरी 192। तो 3% 192 है तो 1% कितना हुआ 64। 100% कितना हुआ 6400। इसका मतलब 3% ये क्या लिया था मेल, तो मेल कितने होंगे 6400। तो फीमेल, मेल प्लस फीमेल कितने थे 9600। तो फीमेल कितनी होंगी 9600 + 6400। आई एम टेलिंग इफ द क्लैट बिकम टफ तब ऐसा डेटा आएगा। और इस डेटा को भी तुम 1 सेकंड में फोड़ सकते हो अगर तुमने ये चीज समझी होगी। आशीष, आयुषी, सबको बात समझ में आई है। एंड फॉर द क्लियरिटी टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस। फॉर द क्लियरिटी टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस। बहुत बढ़िया, पूरा क्लियर हुआ ना। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों, आरुषि नहीं समझ में आया तुम्हें, शुभांगी नहीं समझ में आया, शुभांगी अब आ गया समझ अच्छे से, वेरी गुड। राइट, तो आई थिंक इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। ये क्वेश्चन ले लो, एक दो बार से कॉम्प्रिहेंशन करना। एंड द नेक्स्ट क्लास आई टेक रेशियो प्रोपोर्शन टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड और डेटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। और नेक्स्ट अगेन आई टेक अरिथमेटिक, जिसमें आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क, इन पे बेस कुछ टिप्स दे दूंगा सो दैट यू स्टार्ट कॉम्प्रिहेंडिंग डेटा इज लिटिल स्मूथली, राइट। और जिन कॉन्सेप्ट्स को आपको इश्यू आ रहा है यू कैन व्हाट्सएप आल्सो टू मी,
I'll take care of in the next class. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you.